Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 4 of chapter 3 current electricity. The topics are dependence of resistivity and resistance on temperature and problems based on it and the problems from NCERT textbook. First of all, dependence of resistivity on temperature. You know that when temperature of a conductor increases, then motion of the electrons inside the conductor also increases. That is, thermal agitation increases. This increases the collision duration. This decreases the time duration between electrons and positive ions inside the conductor. That is, relaxation time decreases. And due to decrease in relaxation time, resistivity is given by m upon Ne square tau. As temperature increases, relaxation time tau decreases, and therefore resistivity increases. So therefore, due to increase in temperature of a conductor increases. For a limited temperature range, that is from room temperature 25 degrees C to 500 Kelvin, the variation of resistivity with temperature is linear. However, for metals like copper and aluminum, whose temperature coefficient of resistivity is of the order of 0.004 Kelvin inverse, there is non-linear variation of resistivity with temperature. We can show this variation of resistivity with temperature for the metals like copper or aluminum in the plot of resistivity and temperature later on. Now, for a limited temperature range, the resistivity of a metal increases with temperature by the following relation. The relation is rho at T, temperature T, equals to rho T naught, which is temperature at 0 degree T0, 0 K or 0 degree C. Temperature of a conductor at 0 degree Celsius or 0 K, that is 273 Kelvin, 0 degree C or 273 Kelvin, which is called 0 K. 1 plus alpha C. Alpha C is the temperature coefficient of resistivity of a conductor. T minus T0. ये हो गया फॉर ए कंडक्टर, फॉर ए मेटल या फॉर ए कंडक्टर. वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, ये हो गया फॉर ए कंडक्टर और मेटल. दिस रिलेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज रो एट टी. इसी को हम लिख सकते हैं रो एट टी इक्वल टू रो एट 1 प्लस अल्फा सी टी माइनस T0. If the initial temperature is not 0 degree C, then we can write rho 0 as rho 1. Initial, which is the initial resistivity at initial temperature T1. And rho T can be replaced by rho 2, which is the resistivity of the conductor at
as temperature increases to T2 from T1. So this relation can be this relation, that is variation of resistivity with temperature of a conductor, should be written for temperature, for the temperature range T1 and T2 can be written as rho 2 is equal to rho 1 plus alpha C T2 minus T1. This very relation can be written as same relation, ये 1A कर देते हैं, इसको 1B. सेम रिलेशन है, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सी नहीं है कंडक्टर का, तब इस रिलेशन का यूज करेंगे. टेम्परेचर इनिशियल T1 है, बाद में T2 हो गया, तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं रो 2 इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा सी T2 माइनस T1, वेयर अल्फा सी इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. टेम्परेचर कोफिशिएंट of resistivity for a conductor. Its value is small. For conductor, its value is positive. The value of alpha C is positive for a conductor because temperature of a conductor increases with increase in temperature. यहाँ प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, प्लस साइन. यही अगर माइनस होता तो डिक्रीज होता, जो कि सेमीकंडक्टर के केस में होगा. तो ये प्लस साइन बता रहा है कि ओरिजिनल जो रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 0 के केल्विन टेम्परेचर पर, तो उसमें इतना फैक्टर ऐड हो रहा है. तो देयरफॉर रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये रिलेशन बता रहा है फॉर ए लिमिटेड टेम्परेचर रेंज. तो अल्फा सी का जो वैल्यू होता है मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, इसलिए कि रेजिस्टिविटी कंडक्टर का या मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है. इसलिए ये जो अल्फा सी जो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जो है इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन वेरी स्मॉल होगा. अल्फा सी जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी अल्फा सी का जो है स्लाइटली है, डिपेंडेंसी है लेकिन बहुत स्लाइटली इंक्रीज करता है. तो इस देयरफॉर इट इज पॉजिटिव फॉर ए कंडक्टर और मेटल. और its SI unit is Kelvin inverse. Another unit is degree centigrade inverse in CGS system. तो Kelvin inverse हो गया. अब जो है अल्फा सी को आप डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा सी को जो है के लिए फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं. अल्फा सी कैन बी डिफाइंड एज फ्रॉम दिस रिलेशन. It can be written as this equation 1b can be written as rho 2 upon rho 1 is equal to 1 plus alpha c T2 minus T1. 1 को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो rho 2 minus rho 1 upon rho 1 is equal to alpha c T2 minus T1. So alpha c can be written as rho 2 minus rho 1, that is change in resistivity by original resistivity multiplied by T2 minus T1, that is rho 2 minus rho 1, that is delta rho 2 minus delta rho 1, change in resistivity delta rho upon rho 1 multiplied by delta T. So this is the defining equation for temperature coefficient of resistivity. This is alpha C for temperature coefficient of resistivity of a conductor. Therefore it can be defined as the ratio of change in resistivity per unit initial resistivity per unit increase in temperature. This is the definition of alpha C. Now the variation of resistivity of metals, here copper and nichrome and alloy with temperature are shown in figure 1 and figure 2 respectively. That is resistivity temperature plot of a conductor or metal. For example, here कॉपर का टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है उसको दिखाया गया है, जो कि प्लॉट जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर रखा गया है केल्विन में, और रेजिस्टिविटी जो है रो को का वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, 0.4 जो चेंज होकर के 0.4
इंटू 10 टू पावर माइनस ओम मीटर पर मीटर हो गया टेम्परेचर बढ़ने के साथ। तो उसको शो किया गया है। ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ किसी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी बढ़ता है, और ख़ास करके कॉपर और एल्युमिनियम के केस में जिसका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केल्विन मीन्स 0.004 केल्विन के रेंज में होता है। तो उसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन जो होगा, वैसे एलिमेंट्स का, वैसे मेटल्स का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन जो होगा, रेजिस्टिविटी का वेरिएशन, वह नॉन लीनियर होता है, जो कि यहाँ प्लॉट में दिखाया गया है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर प्लॉट फॉर प्लॉट ऑफ कॉपर या प्लॉट फॉर कॉपर में दिखाया गया है इसको। ये नॉन लीनियर है, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है, इसका अल्फा फॉर कॉपर जो होगा, ये रेंज जो है नियरली 1.4 इंटू 47 इंटू 10 टू द पावर नियरली 10 टू द पावर माइनस 3 के रेंज में होता है। तो उसके लिए ये ग्राफ जो होगा प्लॉट नॉन लीनियर है। लेकिन रेजिस्टिविटी टेम्परेचर फॉर प्लॉट ऑफ नाइक्रोम के लिए, नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है। इसकी रेजिस्टिविटी नाइक्रोम का जो है रो फॉर नाइक्रोम जो है, रो फॉर रेजिस्टिविटी फॉर नाइक्रोम, ये 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर होता है, जबकि यहाँ पर लगभग 1.47 वो 1.46 के रेंज में है। 10 टू द पावर माइनस 10 माइनस 3 केल्विन है। और इसके लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होगा नाइक्रोम के लिए, अल्फा नाइक्रोम के लिए, वह काफ़ी कम, वह वैल्यू 0.0004 मीन्स 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 केल्विन इन्वर्स के टर्म में होगा। यहाँ भी केल्विन इन्वर्स होगा। तो देख रहे हैं कि जिसका नाइक्रोम के लिए जो प्लॉट है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन वह लीनियर है। और लेकिन यह लीनियर जरूर है, लेकिन यहाँ रेजिस्टिविटी का जो इंक्रीज है काफ़ी कम है। देखिए 1 है, 1.10 है रेजिस्टिविटी इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ओम पर मीटर। यहाँ 1.20 है टेम्परेचर, 200, 400 केल्विन, 600, 800 केल्विन। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग से जो है टेम्परेचर 0 के से लेकर के 800 केल्विन तक टेम्परेचर इंक्रीज होने पर केवल रेजिस्टिविटी में केवल 1.20 का इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी में काफ़ी कम स्मॉल इंक्रीज होता है, किसमें, एलॉय लाइक इसमें नाइक्रोम में। इसलिए नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, कंडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। इसलिए इसको हीटिंग कॉइल में, जैसे हीटर है तो हीटर में इसको कॉइल बनाने में, हीटिंग कॉइल और स्टैंडर्ड हीटिंग कॉइल मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज होता है नाइक्रोम का। इसके अलावा मैग्नीन भी है, कॉन्स्टेंटन है, ये सभी एलॉय है, उसका भी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होता है। जबकि यहाँ पर कॉपर के लिए जो है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी काफ़ी कम है, तो उसके लिए ये रेजिस्टिविटी का जो प्लॉट है टेम्परेचर के साथ नॉन लीनियर है। तो ये दोनों प्लॉट बता रहा है, दोनों ग्राफ जो बता रहा है, यह बतलाता है बोथ प्लॉट रिप्रेजेंट दैट टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर और एन एलॉय इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम सेमीकंडक्टर का देखते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ अल्फा कॉपर इज 1.72 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 केल्विन इनवर्स। सिल्वर के लिए 1.47 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 केल्विन इनवर्स होता है। और रेजिस्टिविटी का जो रेंज है काफ़ी हाई है। कंडक्टर के रेजिस्टिविटी का रेंज जो है काफ़ी हाई है, मतलब ये सिल्वर के लिए 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 केल्विन से लेकर के मैंने ये अल्फा का वैल्यू हो गया। अल्फा कॉपर फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर है, ये रो ऑफ कॉपर है, और वहाँ अल्फा जो है रो ऑफ उतना था, ये रो ऑफ कॉपर है। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इतना होता है। और कॉपर का जो अल्फा होता है, अल्फा कॉपर इजकल टू 0.004 केल्विन इनवर्स।
जबकि नाइक्रोम के केस में इससे भी 0.004004 इससे भी स्मॉल होता है। तो ये अल्फा कॉपर है, और अल्फा कॉपर फॉर रेजिस्टिविटी फॉर कॉपर जो है इतना हो गए 1.72 इंटू 10⁻³ केल्विन। इससे भी कम होता है सिल्वर का, जो कि अल्फा फॉर सिल्वर इज 1.47 इंटू 10⁻³ ये -8 ओम मीटर, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का केल्विन इनवर्स होता है, तो 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। तो इसका रेजिस्टिविटी का रेंज काफ़ी ज़्यादा है, माने सिल्वर का माने रेंज बहुत वाइड है। मतलब यहाँ से नियरली 1.5 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर के ये क्वार्ट्ज का होगा, जो फ्यूज क्वार्क होगा उसका 7.5 इंटू 10⁻17 ओम मीटर तक होता है। माने इतना वाइड रेंज है। फॉर ए फ्यूज क्वार्क इट इज फॉर ए फ्यूज क्वार्क रो फॉर क्वार्ज जो होगा, क्वार्ज के लिए 5 इंटू 10⁻17 प्लस 17 ओम मीटर हो गया। तो ये रेंज काफ़ी वाइड है इसका, -8 से लेकर के सिल्वर के केस में 10⁻17 तक। इसके बीच में सेमीकंडक्टर आएगा जिसका रेजिस्टिविटी जो है 10⁻⁵ ओम मीटर से 10⁻⁴ ओम मीटर तक हो सकता है सेमीकंडक्टर के लिए। तो इस प्रकार काफ़ी वाइड रेंज है। नाउ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर विथ टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वह कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में होती है, और रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, दिस टू आर कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स। तो उसका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है, घटता है, डिक्रीज करता है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका कारण यह है कि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम पाया जाता है, उतना नहीं होता है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें कुछ लिबरेट होते हैं, और लिबरेट होकर के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटती है और कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसका अब टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंसी को एक रिलेशन से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वह रिलेशन है द रिलेशन इज RT इक्वल्स टू रो टी, रेजिस्टेंस के केस में R होगा, रो टी इक्वल टू T01, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये बता रहा है माइनस की टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी घटती है, अल्फा S और T माइनस टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस T0। दिस इज द रिलेशन, इसके लिए हो गया इक्वेशन नंबर 3। रो एट टी इज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर एट टेम्परेचर T केल्विन और T डिग्री C, स्मॉल T डिग्री C और T केल्विन, एंड रो T0 इज द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर एट टेम्परेचर 0 के और T डिग्री और 0 डिग्री C। अल्फा S इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, अल्फा S, and this equation can also be written as rho at T is equal to rho at T0। इसी को हम लिख सकते हैं, T0 टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी जो है रो T0 है 1 माइनस अल्फा S T माइनस T0। सेम इक्वेशन है, इस ढंग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्रैकेट में T को रखकर, ऐसे भी सफिक्स में। अल्फा S जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, VT ऑफ ए सेमीकंडक्टर।
और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी निगेटिव होता है, इसलिए कि टेम्परेचर बढ़ने पर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटती है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी घटती है, कंडक्टिविटी लेकिन बढ़ती है, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ने से चूंकि रेजिस्टिविटी घटती है सेमीकंडक्टर का, देयरफॉर टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज निगेटिव। इट इज नेगेटिव अल्फा एस, इट इज नेगेटिव फॉर ए सेमीकंडक्टर, negative for a semiconductor. Reason is that if temperature increases, its resistivity decreases for a semiconductor. तो इसकी रेजिस्टिविटी निगेटिव हो जाएगी। और जैसा कि जर्मेनियम के केस में, ये सिलिकॉन के केस में इसका वैल्यू फॉर सिलिकॉन इट्स वैल्यू अल्फा फॉर सिलिकॉन जो है -0.0075 केल्विन इनवर्स। इसी ढंग से जर्मेनियम के केस में भी लगभग -0.0046 केल्विन इनवर्स होगा। तो ये वैल्यू जो है इसके साथ काफ़ी ये बता रहा है कि इसका वैल्यू जो है निगेटिव है। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। इट इज 0.00075 फॉर -0.75 फॉर ए सिलिकॉन एंड -0.048 केल्विन इनवर्स फॉर जर्मेनियम। बोथ आर निगेटिव। नाउ प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। नाउ वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर, ये प्लॉट है आपको यहाँ फिगर 3 में 2 बनाए थे, उसमें कॉपर के लिए और नाइक्रोम के लिए। तो ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ ये रेजिस्टिविटी घट रही है। और रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर होता है सेमीकंडक्टर में वह 10⁻² ओम मीटर से 10⁻+4+5 ओम मीटर तक हो सकता है। जैसे कि सिलिकॉन का रेजिस्टिविटी 640 ओम मीटर होता है सिलिकॉन के लिए। उसी ढंग से जर्मेनियम के लिए उससे भी उसी ढंग का ऑर्डर, माने उससे भी जो है उसका ऑर्डर थोड़ा 10⁻² ओम मीटर के ऑर्डर में होता है। तो ये क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी, ये प्लॉट टेम्परेचर बढ़ने के साथ सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटती है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर। दिस प्लॉट रिप्रेजेंट्स, ये कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप है, निगेटिव स्लोप है, नॉन लीनियर है, निगेटिव स्लोप है, जो बता रहा है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर की घटती है। तो ये वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर जर्मेनियम सिलिकॉन ETC विथ टेम्परेचर को दिखाया गया है। टेम्परेचर को केल्विन में रख करके, रेजिस्टिविटी ओम मीटर में। ये हो गया इसका वेरिएशन, दैट इज रो टी टेम्परेचर प्लॉट फॉर ए सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर T है केल्विन में, इसके साथ है। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। सेकेंड पार्ट इसी में वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ वेरिएशन ऑफ, या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, वेरिएशन कहें या टेम्परेचर डिपेंडेंस कहें, ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, सिंबल कैपिटल R, विथ टेम्परेचर T। कंडक्टर का, अब इसमें जो है फॉर कंडक्टर और फॉर सेमीकंडक्टर, जैसे इसमें रेजिस्टिविटी में है उसी ढंग का यहाँ भी होगा फॉर कंडक्टर्स।
रेजिस्टेंस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वह लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, उसके अलावा रेजिस्टिविटी, उसके अलावा जो है उसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का तो अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन लेंथ एंड एरिया बोथ इंक्रीजेज, बट both are limited to the increase is limited to very small value, so ratio L by A can be neglected. Therefore since R is equal to rho L upon A होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का जो डिपेंडेंसी है L पर डिपेंड किया, A पर, बिसाइड रेजिस्टिविटी पर भी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर L और A का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन वैल्यू जो इंक्रीज होगा स्मॉल होगा लिमिटेड रेंज के लिए, तो उस केस में L बाई A को जो है कांस्टेंट रखेंगे। देयरफॉर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस रेजिस्टिविटी। तो यहाँ भी इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस का जो होगा वो भी रेजिस्टिविटी जैसा ही होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर और ए सेमी कंडक्टर। अब यहाँ भी है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ कंडक्टर की रेजिस्टिविटी उसी ढंग से इंक्रीज रेजिस्टिविटी के जैसा ही इंक्रीज करता है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन। R, यहाँ रेजिस्टेंस के लिए R लिखेंगे, R एट T इजकल टू R T0, रेजिस्टेंस एट T0, टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा, ये कंडक्टर के लिए है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, T माइनस T0। दिस इज द रिलेशन फॉर दिस वन, और it can also be written as RT is equal to R T0 1 plus alpha C T minus T0। दिस इज इक्वेशन, इसी को लिखे 1A हो गया इसका। इसी रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, RT सब ब्रैकेट में दिए हैं, यहाँ सफिक्स में दे दिए, ये रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट टेम्परेचर T केल्विन और स्मॉल t डिग्री C, एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ ए RT0 इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट टेम्परेचर T0 केल्विन और 0 डिग्री C। अल्फा C इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विच इज C फॉर कंडक्टर, C स्टैंड फॉर कंडक्टर। और यदि इफ इनिशियल टेम्परेचर of a conductor is not 0 degree C, then this relation can be written as, if initial temperature is suppose 30 degree C, final temperature is 100 degree C, then this for this relation we can write it for R2 is equal to R1 1 plus alpha C T2 minus T1 if initial temperature is not 0 degree C. So we can write it, or R2 is equal to R1 1 plus alpha C T2 minus T1, where T1 and T2 are the initial and final temperatures respectively, and R1 is the resistance of a conductor at temperature T1 K, and R2 is the resistance of the conductor at T2 K। R1 जो है रेजिस्टेंस है कंडक्टर का T1 टेम्परेचर पर, और जब टेम्परेचर चेंज होकर के बढ़ के इंक्रीज होकर T2 हो गया तो वहाँ रेजिस्टेंस कंडक्टर का R2 हो गया। और यहाँ प्लस साइन यहाँ बता रहा है सब रिलेशन में, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहाँ प्लस साइन बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि RT0 कॉमन है इस फैक्टर में इतना जो है इसका मल्टीपल इसमें अल्फा C इंटू T माइनस T0 इस फर्स्ट फैक्टर में जो है ऐड बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टिविटी का ही प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और इस देयरफॉर दिस इज द रिलेशन इफ इनिशियल टेम्परेचर इज नॉट 0 डिग्री C, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन, एंड हेयर अल्फा C कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय द रिलेशन। द फॉर्मूला फॉर इक्वेशन 2 वी कैन ऑब्टेन अल्फा C इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 multiplied by T2 minus T1. This is relation 3, which defines the temperature coefficient of resistance of a conductor, and R2 minus R1 can be written as delta R, that is
change in resistance to the original resistance is R1 and change in temperature is T2 minus T1 is delta T. This is the relation, defining relation for, this is the defining relation for alpha C, that is temperature coefficient of resistance, temperature coefficient for resistance of a conductor, and this can be defined as the ratio of change in resistance to the original resistance per unit original resistance per unit increase in temperature. This is the definition of alpha C, temperature coefficient of resistance of for a conductor. Similarly, resistance of a semiconductor decreases with increase in temperature as resistivity of a semiconductor decreases with increase in temperature. तो उसी ढंग से रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर का सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने के साथ घटेगा, जिसको हम देखते हैं उसको रिलेशन. ये नाउ फॉर ए सेमीकंडक्टर similar to resistivity, resistance of a semiconductor also decreases with increase in temperature given by the following relation. R at T, resistance of a semiconductor at temperature T Kelvin is equal to resistance of a semiconductor at T0 temperature R T0 1 minus alpha S T minus T0. कंडक्टर में प्लस था, यहाँ माइनस है, तो वहाँ इंक्रीज हो रहा था रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ, यहाँ निश्चित रूप से टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस जो है घटेगा, ये माइनस साइन यही इंडिकेट करता है. एंड अल्फा एस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर. एंड इफ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज नॉट 0 डिग्री C or 0 K, then we can write this equation 4 as R2 is equal to R1 1 minus alpha S T2 minus T1, where R2 is the temperature resistance of a semiconductor at the final temperature T2, and R1 is the resistance of a semiconductor at the initial temperature T1. This is the so this resistance of a semiconductor with temperature. तो ये टॉपिक आपका हो गया, समाप्त हुआ. अब इसमें इस पर रेजिस्टिविटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ वेरिएशन में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉब्लम है, उसको हम देखते हैं. The first problem I am taking from NCERT text based on dependence of resistivity with temperature is problem 3.7, which is a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at temperature 27.5 degrees C and a resistance of 2.7 ohm at temperature 100 degree C. Calculate temperature coefficient of resistivity of silver. तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी यहाँ निकालना है यहाँ पर, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो दोनों का इसमें एथी है, कम्बिनेशन है. तो एयर गिवन इनिशियल रेजिस्टेंस जो है जब टेम्परेचर शुरू का है 27.5 डिग्री C, तो गिवन R1 इज इक्वल टू 2.1 ओम and temperature is T1 is 27.5 डिग्री C, और रेजिस्टेंस जब हो गया 2.7 ओम एट टेम्परेचर 100 डिग्री C. R2 इज 2.7 ओम एट टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 100 डिग्री C. तो यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर निकालना है, मतलब अल्फा एजी निकालना है यहाँ सिल्वर के लिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. फॉर्मूला आपका है, अभी किए थे अल्फा के लिए, अल्फा इज इक्वल टू, अभी बताया हमने, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1, that is change in resistance per unit original resistance R1 T2 minus T1, and R2 is 2.7 ohm minus R1 is 2.1 ohm upon R1 2.1 T2 100 minus 72.5 इक्वल्स टू 2.7, 0.6 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 2.1 मल्टीप्लाइड बाई 73 रहता, 100 माइनस 72
27.5, तो 73 रहता तो 27 होता, 27.5 हो जाएगा, 27.5, और कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो ये एक अंक पर डिसमल ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपको डिसमल 0.0039 आसपास आना चाहिए, 0.00039 पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। सेंटीग्रेड में दिया है, केल्विन में दिया रहता तो केल्विन में करते, तो यही आपका अल्फा फॉर एजी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर आ गया। लिखें रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो है दोनों टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनली चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड लास्ट प्रॉब्लम। नाउ प्रॉब्लम नंबर 3.8 एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हीटिंग एलिमेंट है यूजिंग नाइक्रोम, जैसे कि हीटर हो गया जिसमें नाइक्रोम का कॉइल यूज किया गया है और 230 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। तो सप्लाई वोल्टेज जो है गिवन इसमें जो प्रॉब्लम में साथ साथ लिखते चलते हैं, सप्लाई वोल्टेज भी 230 वोल्ट है। इसमें रेजिस्टेंस नहीं दिया है, ड्रॉ जे एसटीडी करंट दे दिया है ऑफ 3.2 एम्पियर विच सेटल्स आफ्टर ए फ्यू सेकेंड टू एसटीडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर। पहले 3.1 एम्पियर था इनिशियल करंट, I1 3.2 एम्पियर था। अब ड्रॉप कुछ समय के बाद नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है काफ़ी हाई होता है, रेजिस्टिविटी भी हाई होते है, उसके कारण टेम्परेचर, उसके कारण जो है करंट ड्रॉप हो गया, एसटीडी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त कर लिया ड्रॉप होकर के रेजिस्टेंस के कारण। I2 इज 2.8 एम्पियर हो गया है। और व्हाट इज द एसटीडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। एसटीडी टेम्परेचर जो है T2 निकालना है, इट इज़ द फाइनल टेम्परेचर जो, और निकालना है हीटिंग एलिमेंट का, जबकि इनिशियल रूम टेम्परेचर इज, इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सी, रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सी है, तो ये निकालना है आपको, T2 निकालना है। अल्फा फॉर नाइक्रोम दिया हुआ है, टेम्परेचर डिपेंडेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर नाइक्रोम इज गिवन, अल्फा नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम ये है 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴, तो वी कैन राइट इट ओनली 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सी इनवर्स। अब फार्मूला आप जानते हैं रेजिस्टिव इसके लिए, तो यहाँ पर आपको ये रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस R1 इजकल टू V अपॉन I1 एंड V इज 230 अपॉन I1 इज 3.2, तो ये 2300 अपॉन 32 हो जाएगा, इतना ओम हो जाएगा। और आफ्टर कैलकुलेशन इट कैन बी फाउंड टू बी 71.88 ओम एंड R2 सिमिलरली R2 इजकल टू V अपॉन I2 इक्वल्स टू 230। अब स्टेडी करंट हो गया है ड्रॉप होकर के, अब स्टेडी करंट हो गया है 2.8 दैट इज 2300 अपॉन 28, और ये वैल्यू इज फाउंड टू बी आफ्टर 82.14 ओम। अब फार्मूला आप लगा दीजिए, फार्मूला आपका होता है डेल्टा टी इजकल टू अल्फा के लिए फार्मूला था उसी ढंग से R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा, नाइक्रोम के लिए है अल्फा इंटू और इनिशियल जो आपका रेजिस्टेंस है इंटू R1, और डेल्टा टी वहाँ से डेल्टा टी को लिख सकते हैं T2 माइनस T1 और डेल्टा टी इजकल टू R2 माइनस R1 अपॉन इतना, उसके बाद नाइक्रोम T2 R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा नाइक्रोम के लिए है और इंटू R1, इसलिए T2 आपको निकालना है स्टेडी टेम्परेचर, T2 इजकल टू R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा इंटू R1 प्लस T1, इधर आ गया T1। अब R2 का वैल्यू हम निकाल दिए हैं ओम्स लॉ से, R इजकल टू V अपॉन I, जो कि रेजिस्टेंस नहीं दिया था, वोल्टेज करंट दिया था, तो R2 इजकल टू 82.14 माइनस R1 इज 71.88 अपॉन अल्फा इज गिवन, अल्फा इज 1.7 into 10⁻⁴ and R1 is 71.88
प्लस 27। अब इसको दोनों का डिफरेंस करके इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगा 840, इसका वैल्यू प्लस ये 27, T1 जो है उस साइड में जा करके दैट इज 867 डिग्री C। दिस इज द स्टेडी टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। यही हो गया आपका स्टेडी टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, स्टेडी टेम्परेचर। दिस इज द आंसर। तो ये पार्ट जो है समाप्त होता है। इसमें दो प्रॉब्लम हमने लिया, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पर भी और डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर देखे और उस पर प्रॉब्लम देखे। अगले पार्ट में मिलेंगे।